اب اور تو ہمارے پاس بیسیکلی دو الفاظ میں نے آپ کو بتایا پرسوں کے لیے, گزرے ہوئے پرسوں کے لیے دا ڈے بفور یسٹرڈے, اور آنے والے پرسوں کے لیے دا ڈے آفٹر ٹمورو. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس the یہ day دو after الفاظ ہیں tomorrow. جو آپ مختلف جملوں کے اندر ڈیلی بیسس میں استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ when did you come back, آپ واپس کب آئیں, تو آپ کہتی ہیں کہ I came back, میں واپس آئی the day before yesterday. ٹھیک ہے, the day before yesterday کا مطلب کیا ہے, پرسوں, کہ میں پرسوں ہی واپس آئی. اسی طرح اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کب دبئی جائیں گی اور آپ نے کہنا ہے کہ میں پرسوں جاؤں گی, یہ فیوچر انڈیفینٹ ہے, تو آپ پہلے تو فیوچر انڈیفینٹ کے سارے رولز لگا دیں گی کہ I will go to Dubai, میں دبئی جاؤں گی, اور اس کے آگے آپ کیا لکھیں گی, the day after tomorrow, یعنی کہ پرسوں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, the day after tomorrow and the day before yesterday. اسی طرح کچھ بہت کامن ورڈز ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتے ہیں, جس میں ایک ہے مہنگائی. ٹھیک ہے, تو مہنگائی کی آپ نے انگلش یاد رکھنی ہے. مہنگائی کی انگلش ہوتی ہے پرائس ہائک. یاد رکھیے گا کیا ہوتی ہے, پرائس کہتے ہیں نا قیمت Price کو. hike. ٹھیک ہے, پرائس ہوتی ہے جی. قیمت, اور ہائک ہوتی ہے, ہائک ہوتا ہے بہت زیادہ اضافہ, HIKE. سو یہ کیا ہو جائے گا, پرائس ہائک از دا ورڈ وچ از یوزڈ فار دا مہنگائی. سو جب بہت زیادہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کو بولتے ہیں پرائس ہائک, جس کو ہم اردو میں مہنگائی کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ مہنگائی کا ترجمہ انگلش میں انفلیشن کرتے ہیں, جو کہ نہیں ہوتا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, انفلیشن جو ہے وہ مہنگائی نہیں ہوتی. انفلیشن کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے افراط زر. کیا ہوتا ہے, افراط زر. افراط زر اور مہنگائی میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو انفلیشن افراط زر ہے, پرائس ہائک مہنگائی ہے. ٹھیک ہے, تو پرائس ہائک مہنگائی اور انفلیشن افراط زر. افراط زر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ان کا سینٹرل بینک جو ہے, جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, وہ نئے نوٹ چھاپتا ہے. جب وہ نئے نوٹ چھاپتا ہے تو پیسے کی جو ہے نا پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. اس کو ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے, اس کو انفلیشن کہتے ہیں. لیکن انفلیشن مہنگائی نہیں ہوتی, مہنگائی کی انگلش ہوتی ہے پرائس ہائک. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کل مہنگائی اپنے عروج پر ہے, آج کل جی. مہنگائی اپنے عروج پر ہے, یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہر شخص روزانہ بولتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل مہنگائی جی. اپنے عروج پر ہے. اب عروج کی انگلش بھی لکھ لیں. عروج کو کہتے ہیں پیک, PEAK, پیک. پیک ہوتا ہے بلندی, چوٹی, یعنی کسی پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں اس کا پیک. ٹھیک ہے, تو جی. سب سے بلند حصے کو پہاڑ کے بولتے ہیں پیک, سب سے بلند جگہ کو, سب سے بلند چوٹی کو. تو مہنگائی اپنی بلند ترین سطح پر ہے یا مہنگائی اپنی چوٹی پر ہے, کیا ہو جائے گا, پرائس ہائک از, پرائس ہائک یعنی مہنگائی ہے آن اٹس پیک, اپنی پیک پر, اپنی چوٹی پر. ٹھیک ہے, تو پرائس ہائک جو ہے وہ اپنی چوٹی پر ہے, پرائس ہائک از آن اٹس پیک. ٹھیک ہے, اس طرح ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا مہنگائی کو بولتے ہیں پرائس ہائک. اسی طرح ہم جو ڈیلی بیسس کے اندر بہت سارے الفاظ بولتے ہیں, جس کے اندر ایک چیز آپ نے سب سے پہلے یاد رکھنی ہے کہ ناشتہ جو ہوتا ہے نا, بریک فاسٹ, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس کے بعد جو میل ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, برنچ. یاد رکھیے گا, بریک فاسٹ کے بعد کیا ہوتا Brunch. ہے, برنچ. یعنی کہ وہ کھانا جو آپ بریک فاسٹ اور لنچ کے درمیان میں کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں برنچ. دیکھیں دنیا بھر میں ایک اصول ہے کہ 6 دفعہ کھانا کھانا چاہیے جو ہے نا دن میں 6 دفعہ کھانا کھاتے ہیں, اور کھانا اس طرح نہیں کھاتے جس طرح ہم کھاتے ہیں 6 دفعہ, اس کا مطلب پورشنز میں کھاتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, تو پورشنز میں اچھا. کھاتے ہیں مطلب کہ اگر ہم نے 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو اسی کھانے کو 600 میں ڈیوائڈ کر کے کھاتے ہیں 6 دفعہ. ٹھیک ہے, تو اس کو بولتے ہیں بریک فاسٹ. بریک فاسٹ کے بعد ہوتا ہے برنچ, BRUNCH. ٹھیک ہے, برنچ. تو برنچ ہوتا ہے 10-11 بجے کے درمیان. اس کے بعد برنچ کے بعد ہوتا ہے لنچ, آپ کو پتا ہی ہے. اس کے بعد ہوتی ہے ہائی ٹی. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹورینٹس میں بھی ہوتا ہے نا مختلف قسم کی لنچ پلس ہائی ٹی, لنچ پلس ہائی ٹی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہوتی ہے شام کی چائے یعنی ہائی ٹی, آفٹرنون میل. اور اس کے بعد ہوتا ہے سپر. ڈنر کوئی کھانا نہیں ہوتا دن کا, یہ یاد رکھیے گا. شام کے کھانے کو بولتے ہیں سپر, SUPPER, سپر. سپر اس شام کا کھانا. ٹھیک ہے, تو پھر ڈنر کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بھی بعد میں بتاتا ہوں. تو سپر کہتے ہیں ٹیکنیکلی شام کے کھانے کو,
ठीक है, सुबह का खाना ब्रेकफास्ट, ठीक है, उसके बाद लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान लड़का पीस को आएगा, लड़का दे दें, हाँ दुकान खुल जाएगी। ठीक है, चाबी ले ली, जाओ। चाबी क्या करनी है? दरवाजा दुकान खोल दो ना थोड़ी देर के लिए। शटर उठाया हूँ। हाँ शटर लगाना, फिर शाम को लगा देना। नहीं वो नहीं कहेगा लगाने को, वो नहीं कहेगा लगाने को, तुम लग करो। दो साइडों की शटर खोलो। खोला तुम। जी सर, सफर कहते हैं जी। सबसे पहले ब्रेकफास्ट है, फिर ब्रंच है, फिर लंच ब्रेकफास्ट, है, ब्रंच, लंच, हाँ, फिर हाई टी, फिर और सफर। फिर सपर है। शाम का खाना होता है सपर, SUPPER, सपर। और जो डिनर है, बेसिकली डिनर का मतलब होता है फीस्ट। फीस्ट होता है, फीस्ट FEAST, फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है दावत जी, दावत वाला खाना। वैसे आइसक्रीम का नाम भी है ना एक, वॉल्स की फीस्ट, ठीक है। फीस्ट बेसिकली बोलते हैं दावत को। तो डिनर होता है दावती खाना, यानी जब आपको किसी ने खाने पे बुलाया है, दावत पे बुलाया है, तो वो डिनर पे बुलाया उसने आपको, ठीक है। तो दावती खाने को डिनर कहते हैं। जब आप बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खाते हैं, इसको डिनर कहते हैं। वो अलग बात है कि हमारा रोजाना का खाना डिनर होता है, लेकिन इसको बोलते हैं डिनर, एक खास दावती खाने को। आमतौर पे जो हम रोज शाम को खाना खाते हैं, इंग्लिश में उसको सपर कहा जाता है, जो बिल्कुल ही थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है, ठीक है। बिकॉज इन इंग्लिश वी से कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, eat breakfast like a king, and then eat lunch like a minister, but eat supper like a slave, ठीक है। तो ये गोरे कहते हैं कि किस तरह खाना आपने ब्रेकफास्ट ऐसे खाएं जैसे बादशाह खाते हैं, लंच ऐसे जैसे वजीर खाते हैं, और शाम को खाना ऐसे खाएं जैसे गुलाम खाते हैं, यानी कम, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये वाले वर्ड्स आपने याद रखने हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको शाम के खाने पे बुलाता है, तो तब आप उसको डिनर पे कह सकते हैं कि वी आर इनवाइटिंग यू ऑन अ डिनर। लेकिन अगर आप घर पे खाना खा रहे हैं शाम का खुद ही, तो वो फिर डिनर नहीं है, वो सपर है टेक्निकली, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क समवन टू बी, जिस तरह हम शाम की चाय पे बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, लंच प्लस हाई टी इकट्ठा कर लेते हैं ना। तो किसी को अगर आपने नाश्ते पे बुलाना है, तो बेसिकली हम किसी को ब्रेकफास्ट तो करवाते नहीं, हम ब्रंच ही करवाते हैं। सुबह 7-8 बजे कौन बुलाता है किसी को खाने पे? तो ऑब्वियसली हम अगर बुलाते नहीं है नाश्ते पे, तो वो 10-11 बजे बुलाते हैं। तो आपने हमेशा क्या कहना है कि वी आर इनवाइटिंग यू ऑन द ब्रंच, ब्रेकफास्ट नहीं कहना, ठीक है। इवन वो जो दूल्हा दुल्हन को शादी के पहले दिन सुबह नाश्ता रहता है ना, वो ब्रेकफास्ट नहीं होता, वो ब्रंच ही होता है, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट का टाइम गुजर गया होता है, और वैसे भी वो इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता, वो ब्रंच ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर लंच वाली चीजें भी कुछ मौजूद हो। तो इसको ब्रंच कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान वाली चीज है, इसको ब्रंच कहते हैं। सो बेसिकली आइदर वी इनवाइट पीपल ऑन ब्रंच और हाई टी और डिनर, ठीक है। लेकिन जो रोजाना का खाना है वो है ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, हाई टी एंड सपर। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, हाई टी, सपर, जी एग्जैक्टली, ये हमारे नॉर्मल जो मील्स होते हैं दिन के, वो ये। अच्छा, इसके अलावा आपने कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं, जो कि आपको शायद मालूम भी हो लेकिन फिर भी याद रखने हैं। जिस तरह एक वर्ड है एक्सरसाइज, ये तो आपको सबको पता है कि वर्जिश को बोलते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन आपने ये जो लेटेस्ट वर्ड जो आजकल इसके सिनोनिम्स यूज होते हैं, आपको वो भी आने चाहिए, वो याद रहने चाहिए। जिस तरह के लंच का, सॉरी, एक्सरसाइज का जो सबसे बड़ा सिनोनिम है जो आजकल यूज होता है, सिनोनिम का मतलब होता है मुतरादिफ अल्फाज, याद रखिएगा। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? मुतरादिफ अल्फाज, यानी जो उसकी जगह पर इस्तेमाल दूसरे अल्फाज होते हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। जैसे कि एक्सरसाइज का सबसे जो बड़ा सिनोनिम है, जो मुतरादिफ लफ्ज है जो आजकल इस्तेमाल होता है, वो है वर्कआउट, याद रखिएगा। क्या है? वर्कआउट, WORKOUT, वर्कआउट। तो कोई अगर आपको ये कहे कि मैं वर्कआउट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है। आई एम वर्किंग आउट, इसका मतलब कि मैं वर्जिश कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, आई एम एक्सरसाइजिंग। तो आजकल के दौर के अंदर जो वर्ड है वो एक्सरसाइज इस्तेमाल कम ही होता है, ज्यादा वर्ड का इस्तेमाल होता है वर्कआउट, ठीक है। और वर्कआउट के अंदर भी और भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कार्डियो, ठीक है। कार्डियो, ये भी एक्सरसाइज को ही बोलते हैं कार्डियो, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं होती, इसके अंदर जॉगिंग को ज्यादातर, या जॉगिंग या वॉक को बोलते हैं कार्डियो। कार्डियो बेसिकली कार्डियक से निकला है। कार्डियक जो है ना, मेडिकल साइंस में दिल को कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना, दिल का डॉक्टर, तो कार्डियक बोलते हैं दिल को, हार्ट को मेडिकल साइंस में। तो कार्डियो ऐसी एक्सरसाइज को बोलते हैं जिसके अंदर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब आप भागते हैं, आप चलते हैं,
ठीक है, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं ट्रेडमिल के ऊपर या बाहर किसी पार्क में या सड़क पे, तो क्या होता है, आपके दिल की धड़कन तेज होती है, तो इसको कार्डियो कहते हैं। तो मैं कार्डियो कर रहा हूँ, इसका मतलब है आई एम डूइंग कार्डियो, इसका मतलब क्या होगा, वो गोरा क्या बोल रहा है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम वर्किंग आउट राइट नाउ, ठीक है। तो आगे से अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को आप फोन करते हैं या आप ईमेल करते हैं, आप किसी को बुलाते हो, कहता है आई एम डूइंग कार्डियो, इसका मतलब क्या है कि वो बिजी है, ठीक है। तो जब आपको पता चल जाए कि कोई शख्स बिजी है, कोई शख्स मसरूफ है, और आप उसको ये कहना चाहिए अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अपना काम कंप्लीट कर लें, तो इसके लिए जो बेहतरीन वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश में वो है टेक योर टाइम। ये वर्ड याद रखिएगा, क्या होता है, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम का मतलब क्या है कि आपको जो वक्त लग रहा है वो लगाओ, कोई मसला नहीं है, आई एम वेटिंग, ठीक है। तो या कोई कहता है वेट वेट वेट, ओके श्योर श्योर, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम का मतलब क्या है कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, कोई मसला नहीं है, आप अपना काम मुकम्मल करके फिर मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम का मतलब क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस काम में भी मसरूफ हैं, आप वो मुकम्मल कर सकते हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूं, कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, टेक योर टाइम। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि ओके प्लीज ज्वाइन द क्लास, आप मुझे आगे से रिप्लाई करती हैं वेट आई एम बिजी, वेट आई एम बिजी, या वेट आई एम डीलिंग विद कस्टमर्स, ठीक है, आई एम डीलिंग विद कस्टमर्स। सॉरी क्या कह रहे हैं, आवाज कट रही है आपकी, अच्छा आपकी आवाज कट रही है। अब ठीक है, टेक योर टाइम, हाँ आप मुझे कहेंगे कि ज्वाइन क्लास, तो मैं कहूंगी आप कहती टेक है योर वेट टाइम, आई एम डीलिंग विद द कस्टमर्स, ठीक है। अगर आप मुझे आगे से ये मैसेज करती हैं कि ठहरे मैं कस्टमर्स को डील कर रही हूँ, तो मैं आगे से आपको बोलूंगा श्योर श्योर, श्योर का मतलब है कोई मसला नहीं है, यकीनन, श्योर, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम का मतलब क्या है कि आप आराम से अपना काम मुकम्मल करें, ठीक है। तो ये वर्ड इस्तेमाल होता है टेक योर टाइम, जो कि नॉर्मली इंग्लिश के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी शख्स को कोई आपको आगे से ये कहे कि आई एम रादर बिजी, मैं थोड़ा मसरूफ हूं, मैं कोई ये काम कर रहा हूं, मैं कुछ और कर रहा हूं, तो आप उसको आगे से रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, आप हमेशा कहते हैं ओके टेक योर टाइम, आई एम वेटिंग। एक और चीज, और आप अगर किसी को ये कहना हो आपने कि फिर जब फ्री हो जाओगे तो मुझे बता देना, जब फ्री हो जाओगे जी तो मुझे बता देना, ये भी एक ऐसा जुमला है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, अच्छा यार जब फ्री होना बताना मुझे, जब फ्री हो जाए तो बता देना, जब फारिग हो जाए तो बता देना, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, जी इसकी इंग्लिश होती है प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो, लिख ले, प्लीज लेट मी नो, मेहरबानी करके मुझे बता दें, प्लीज मेहरबानी करके, लेट मी, LET लेट, फिर स्पेस मी, मुझे, नो बताएं, मुझे बता दें, प्लीज लेट मी नो वंस, एक बार, वंस का मतलब क्या होता है, एक बार, यू आर फ्री, वंस यू आर फ्री, एक बार जब आप फ्री हो जाएं, जब आप एक दफा जो है मसरूफियत आपकी खत्म हो जाए, जब आप फ्री हो जाएं, जब आप फारिग हो जाएं, तो प्लीज मुझे मेहरबानी करके मुझे एक दफा बता दें, प्लीज लेट मी नो वंस यू आर फ्री। ये जुमला आप जहन में बिठा लें, आप रोजाना 50 दफा इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में, जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे या इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। प्लीज लेट मी नो ठीक है, वंस यू आर फ्री, क्या मतलब है इसका, कि मेहरबानी करके मुझे बता दीजिएगा जब आप फ्री हो जाए, मुझे एक मैसेज कर दें कुछ भी, ठीक है। तो प्लीज लेट मी नो वंस यू आर फ्री। तो जब भी आपको कोई मैं मसरूफ हुआ तो आप क्या बोलेंगे कि जी अच्छा वो आपने लाजिम हाँ तो चाहिए। हाँ, थोड़ी देर में जरा क्लास ले रही हूँ, फिर मैं बात करती है, मैं अभी आ जाएगी 10 आधा घंटे बाद, ठीक है जी सर। ठीक है। तो जब भी आपको कोई बोले कि मैं वेट करें मेरा, मैं मसरूफ हूं, तो आप क्या जी कहेंगे, श्योर, टेक योर टाइम, एंड प्लीज लेट मी नो वंस यू आर फ्री, ठीक है। चले अब मुझे बोल के दिखाएं कि अगर मैं आपको बोलता हूं ओके प्लीज वेट आई एम बिजी, प्लीज वेट आई एम बिजी, तो मैं कहूंगी प्लीज लेट मी नाउ, नहीं पहले आप ये तो कह दें कि टेक योर टाइम। हाँ टेक यू टाइम, सॉरी मैं उधर से पढ़ रही थी। अच्छा अच्छा इसमें आप कह टेक सकते हैं, यू टाइम देखें कहेंगे, आप कह सकती हैं श्योर नो, या आप कह सकती हैं नो वरीज। नो वरीज का मतलब क्या है,
کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, کوئی جی مسئلہ نہیں کو ہم انگلش میں بولتے ہیں نو وریز. کیا کہتے ہیں؟ نو نو وریز, وریز. یعنی گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ نو وریز. تو آپ کہتے ہیں شور, نو وریز, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیک یور ٹائم, آپ اپنا وقت لیں, ٹیک یور ٹائم. ٹھیک ہے, اینڈ پلیز لیٹ می ٹھیک. نو ونس یو آر فری, ٹھیک ہے, اور مہربانی کر کے مجھے بتا دیں جب آپ فری ہو. یہ ہے ایک مہذب طریقہ کسی سے بھی بات کرنے کا, کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار ویٹ کرو, ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں تو ویٹ والا کلچر ہی نہیں نا. ہمارے ملک میں تو آپ نہیں. تدفین کرتے ہوئے قبر کے اندر بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار فون تو اٹھا لینا تھا میرا, کیوں نہیں اٹھایا, ٹھیک ہے, صحیح بات. تو ان کو بتا دو یار میں قبر کے اندر بیٹھا ہوا تھا, تدفین میں تھا. وہ کہتے ہیں یار 2 منٹ کی بات ہی کر لینی تھی. تو یہ چیز ہے باہر. ہاں لوگ. تو یہ ہوتا ہے, یہ جو ہے نا لوگ ویٹ نہیں کرتے بالکل. آپ پوری دنیا کے اندر کسی کو ڈائریکٹلی فون نہیں کر سکتے, آپ پہلے اس کو میسج کرتے ہیں کہ کین آئی کال یو, اگر وہ آپ کو ریپلائی کرتے ہیں یس یو کین, پھر آپ فون کرتے ہیں. ہم تو یہاں پر سیدھا فون اٹھا کے رات کو 2:30 بجے بھی کسی کو ملا دیتے ہیں, یار بات سنی, ٹھیک ہے, ہاں وہ جی. کہتا ہے یار میں سو رہا تھا بھائی, تو یار کیا ہوا, آپ تمہارا فون نہیں اٹھائے گا سوتے ہوئے بھی. یہاں پر بس ایموشنل بلیک میلنگ بہت ہے باہر. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی کہتا ہے پلیز ویٹ, ٹھیک ہے, تو آپ آگے سے کہیں شیور, نو وریز, ٹیک یور ٹائم, پلیز لیٹ می نو ونس یو آر فری, ٹھیک ہے. آپ بتائیں کیا لکھا آپ نے. آپ کو کوئی کہتا میں ہے نے پلیز لکھا ویٹ, تھا سب سے پہلے, پلیز میں نے لکھا تھا کہ ٹیکنگ ٹائم, ٹیک یور ٹائم, ہاں, اس سے آئی پہلے ایم آپ نے ویٹنگ پلیز. نو وریز بھی کہہ دینا ہے, بہتر نہیں, نو وریز کوئی مسئلہ جی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں, ٹھیک ہے, نو وریز, ٹیک یور ٹائم, آئی ایم ویٹنگ. نہیں نہیں, آئی ایم ویٹنگ بھی آئی ایم ٹھیک ہے, ویٹنگ. لیکن آپ یہ بھی کہنا کہ مجھے بتا دیجئے کہ جب آپ فری ہو. ہاں تو یہ پلیز لیٹ می ناؤ ونس یو آر فری. پرفیکٹ, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ آگے بات کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا جملہ ہے جو آپ کو ڈیلی بیسس کے اندر آپ ڈیلی استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ایک ایسی چیز ہے جو ہم روزانہ فیس کرتے ہیں, روزانہ, وہ ہے ٹریفک, ٹھیک ہے. ٹریفک. جی. ایک میٹروپولیٹن شہر میں رہنے سے, ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے. اچھا, ٹریفک کے لیے سب سے پہلے شہر کو سمجھنا ضروری ہے. انگلش میں کچھ ٹرمز ہوتی ہیں, یاد رکھیے گا. لاہور ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, یاد رکھیے گا کیا ہے, میٹروپولیٹن. میٹروپولیٹن کا میٹروپولیٹن مطلب سٹی. ہوتا ہے ایک ایسا شہر جو اپنے علاقے کا, اپنے ریجن کا, ریجن کہتے ہیں علاقے کو, یاد رکھیے گا, اپنے علاقے کا, اپنے خطے کا کلچرل, پولیٹیکل, اکنامک اور سوشل ہب ہوتا ہے. 4 چیزیں بتائیے میں نے ہم کو. کلچرل یعنی ثقافتی, اکنامک مینز معاشی, اکنامک. معاشی اکنامک سے نکلا نا, اکانومی سے نکلا, معیشت سے نکلا, پیسے سے نکلا, ٹھیک ہے. جو کلچرل, اکنامک, ثقافتی, معاشی, سوشل, معاشرتی, سماجی, اینڈ پولیٹیکل اور سیاسی ہب ہوتا ہے, سینٹر ہوتا ہے, مرکز ہوتا ہے. مرکز کو کیا بولتے ہیں, سینٹر یا ہب, ٹھیک ہے. تو جو شہر اپنے علاقے کا ثقافتی, سیاسی, سماجی اور معاشی یعنی اقتصادی ہب ہوتا ہے, مرکز ہوتا ہے, اس کو میٹروپولیٹن سٹی کہتے ہیں. اور لاہور ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. پوری دنیا کے اندر, ہر ملک کے اندر 2-3 شہر ہوتے ہیں جو میٹروپولیٹن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جس میں پاکستان کے اندر 2 میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, صحیح جس کو آپ میٹروپولیٹن کہہ سکتے ہیں, ایک کراچی اور ایک لاہور, ایک لاہور. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ انڈیا میں چلے جائیں تو 2 بڑے میٹروپولیٹن لاہور. ہیں, ممبئی اور دہلی ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بڑا ملک ہے تو آپ چنئی, کولکتہ اور بنگلورو کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ میٹروپولیٹنز ہیں. اگر آپ جس طرح آپ جاتے ہیں وہاں تو سبھی ایسے ہیں. کہاں, نہیں, انڈیا کے اندر بھی بہت بہت چھوٹے اسمال ٹاؤنز ہیں, چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, لیکن جو بڑے میٹروپولیٹنز ہیں وہ دہلی, نہیں. کولکتہ, بنگلور اور چنئی ہاں ہیں, جی. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ شنا. جاتے ہیں انگلینڈ میں تو وہاں پر لندن, برمنگھم اور مینچسٹر ہیں. اسی طرح ہر ملک کے اندر میٹروپولیٹنز ہوتے ہیں. امریکہ میں چلے جائیں آپ, نیو یارک ہے, شکاگو ہے, ٹھیک ہے, لاس اینجلس ہے. تو یہ سارے بڑے شہر ہوتے ہیں جو اپنے علاقے کے سوشو پولیٹیکل اکنامک ہب ہوتے ہیں. اب ایک جو میٹروپولیٹن شہر ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, اس کے اندر مختلف علاقے ہوتے ہیں. یہ ورڈز بھی یاد رکھیے گا. ایک ہوتا ہے ڈاؤن ٹاؤن, امریکی اس کو کیا بولتے ہیں, ڈاؤن ٹاؤن. امریکی اس کو ڈاؤن ٹاؤن بولتے ہیں, انگلینڈ کے لوگ اس کو سٹی سینٹر بولتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے بیسیکلی پرانا شہر. کیا ہوتا ہے, پرانا شہر. اگر آپ کہیں کہ میری اچھا. دکان ڈاؤن ٹاؤن میں جی. نہیں ہے, آپ کی جو شاپ ہے نا وہ ڈاؤن ٹاؤن کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, اور نہ آپ کی دکان ڈاؤن ٹاؤن میں ہے, اچھا.
ठीक है, तो आपने कहा ना आई एम नॉट लोकेटेड इन द डाउनटाउन ऑफ लाहौर, आई एम नॉट लोकेटेड, लोकेटेड क्या होता है, लोकेशन होना, वाक्य होना, कि आपकी दुकान डाउनटाउन में नहीं है। डाउनटाउन क्या होता है याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर, एक बहुत बड़े शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाके होते हैं, इंग्लिश में डाउनटाउन बोलते हैं या सिटी सेंटर बोलते हैं पुराने शहर को। यानी लाहौर का डाउनटाउन कौन सा होगा, वॉल सिटी, मोची गेट, दिल्ली गेट, कुराली गेट, भाटी गेट, गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक, ठीक है, कृष्ण नगर, संत नगर, ये सारे क्या है, ये डाउनटाउन है, ठीक है। इसी तरह कुछ इलाके होते हैं, पोश एरियाज जिसको आप कहते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर सब अर्बन। क्या कहते हैं, सब अर्बन। आपकी दुकान है ना वो है सब अर्बन में, SUB, सब अर्बन, URBAN, सब अर्बन। तो आपकी जो शॉप है ना वो है सब अर्बन एरिया में। गुलबर्ग जो है वो क्या है, वो एक सब अर्बन एरिया है, ठीक है। गुलबर्ग है, जोहो टाउन है, या फैसल टाउन है, गार्डन टाउन है, इकबाल टाउन है, ये सारे क्या है, ये सब अर्बन है, ठीक है। तो ये सब अर्बन एरियाज हैं, ये डाउन टाउन नहीं है, याद रखिएगा। डाउन टाउन में बहुत रश होता है, ठीक है, और पुराने नेटिव लोग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब अर्बन एरियाज हैं जिसको हम पोश एरियाज कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आउटस्कर्ट्स होते हैं। आउटस्कर्ट्स क्या होते हैं, नवाही इलाके। आउटस्कर्ट क्या होता है, नवाही इलाका, जिस तरह शादरा है, गज्जू मता है, बेगम कोट है, ये सारे क्या है, ये आउटस्कर्ट्स हैं लाहौर के, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स, OUTSKIRTS, आउटस्कर्ट्स। तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है आपके बिजनेस की भी, आपके बिजनेस की जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो डाउनटाउन के लोग हैं, ठीक है, और ना ही आउटस्कर्ट्स के लोग हैं। आपके कस्टमर्स और आपकी दुकान कहाँ है, सब अर्बन एरिया में, ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्ड क्या आता है, सब अर्बन। और इसके अलावा एक इलाका होता है मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर, उसको बोलते हैं कैंटोनमेंट, जिसको हम शॉर्ट वर्ड में कहते हैं कैंट, उर्दू में कहते हैं छावनी। तो कैंटोनमेंट भी होता है, फौजी इलाका भी होता है, ठीक है, किसी भी शहर के अंदर, जिसके अंदर आपका इस पूरा कैंट, वॉल्टन और DHA आता है, ये सारा क्या है, ये कैंटोनमेंट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैंट। तो एक बड़े शहर के अंदर, एक मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर डाउनटाउन होता है, फिर सब अर्बन एरिया होता है, फिर आउटस्कर्ट्स होते हैं, और फिर कैंटोनमेंट होता है। तो आपकी जो दुकान है वो कहाँ है, वो सब अर्बन एरिया में है। सब अर्बन एरिया के अंदर ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू डाउनटाउन। सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ होती है, डाउनटाउन में, ठीक है। डाउनटाउन में वहां पर तो आपसे गाड़ी चलाई ही नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आप लक्ष्मी चौक में जाएं या आप भाटी चौक में जाएं, आपको लग पता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह चालमी के चौक में जाना बड़ा मुश्किल काम है। इसी तरह जब आप जाते हैं सब अर्बन एरियाज में, तो कंपैरेटिवली ऑर्डरली ट्रैफिक होती है, बेहतर ट्रैफिक होती है। जब आप आउटस्कर्ट्स में जाते हैं तो वहां पर भी ऑर्डरली ट्रैफिक नहीं होती, वहां पर भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की ट्रैफिक होती है आउटस्कर्ट्स के अंदर भी। और कैंटोनमेंट में भी बेहतर होती है, क्योंकि वो तो होता ही सिविलियंस का इलाका नहीं है, फौजियों का है, तो वो तो फिर आपको पता है कि वो तो इस मुल्क के मालिक हैं, तो वहां पर तो वैसे ही वो कुछ नहीं करने देते। तो वहां कैंटोनमेंट के अंदर कुछ और सिनेरियो होता है। अब बात यह है कि आप जब भी ट्रैफिक की बात करती हैं इंग्लिश के अंदर, तो आप कहती हैं ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे, स्पेशली आप कहते हैं और ये लिबर्टी राउंड अबाउट के पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि there was a lot of traffic, there was a lot of क्या होता है, बहुत ज्यादा, lot of क्या होता है, बहुत ज्यादा, LOT, lot, फिर स्पेस, फिर ऑफ, lot of। तो there was a lot of traffic, बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी at Liberty roundabout पे, ठीक है। अच्छा, लिबर्टी नहीं होता, लिबर्टी होता है, ये याद रखिएगा ये वर्ड, ठीक है। अगर आपने अपने थोड़े से पढ़े लिखे लोगों को, वो कस्टमर्स को आपने इंप्रेस करना है ना, ठीक है, लिबर्टी नहीं कहना आपने, लिबर्टी, ली जना लिब, आपने इकट्ठा बोलना है, लिबर्टी, लिबर्टी, यस, लिबर्टी। जिस तरह मैं आपको बताता हूं, जैसा फोटोग्राफी आप कहती है ना, फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी नहीं होता, फोटोग्राफी होता है, फोटोग्राफी, ग्राफी होता है, ग्राफी नहीं होता है, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, ग्राफी नहीं कहना आपने, ग्राफी कहना, ग्राफी, ग्राफी और ग्राफी में फर्क है, ग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, डेमोक्रेसी, ठीक है, सिनेमेटोग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी नहीं होता, ये डेमोक्रेसी नहीं होता, डेमोक्रेसी, फोटोग्राफी, जियोग्राफी,
ठीक है, तो ग्राफी होता है, ये ग्राफी वर्ड नहीं है, ये आपने हमेशा याद रखना है। जिस तरह हम ये कहते हैं ना मैं बूफे करने गया था, ये बूफे नहीं होता, ये बफे होता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। कभी आपने जी बूफे नहीं ठीक है। कहना मैंने बूफे डिनर खाया था, ठीक है, कहते हैं ये बफे होता है, बफे, BUFFETT साइलेंट होता है, द वर्ड इज बफे नॉट बूफे, ठीक है। तो क्योंकि आपने इंग्लिश बोलनी है तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होनी चाहिए, आपका तलफ्फुज भी ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं आप कि आई वॉज स्टक, आई वॉज स्टक, मैं फंस है? गई। स्टक का मतलब क्या था, फंस जाना, क्या ठीक है? है? अभी दुकान वाले भैया 1 मिनट, 1 मिनट में करती हूँ जी। मैं ट्रैफिक में क्या सर, मैं डे आपको बता रहा था वाज कि आप कहते हैं कि मैं लोड ट्रैफिक में फंस गई थी, आई वॉज स्टक इन द ट्रैफिक, जी। स्टक होता है वर्ड STUCK, स्टक, आई वॉज स्टक इन द ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। लिबर्टी राउंड अबाउट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, देयर वॉज वहां थी, अ लॉट ऑफ बहुत ज्यादा ट्रैफिक एट लिबर्टी राउंड अबाउट, लिबर्टी गोल चक्कर पे, लिबर्टी राउंड अबाउट पे, ठीक है। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एट लिबर्टी राउंड अबाउट, आई वाज स्टक इन द ट्रैफिक, आई वाज स्टक इन द ट्रैफिक, प्लीज वेट, अगला क्या कहेगा, ओके श्योर नो वरीज, टेक योर टाइम, प्लीज लेट मी नो वंस यू आर फ्री। इस तरह बातें होती है इंग्लिश, समझ आ गई बात। तो दिस इज हाउ यू टॉक, आई जी जी। मीन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या पढ़ना पड़ता है, आपको कुछ अल्फाज सीखने पड़ते हैं और जुमले की सेंस समझनी पड़ती है कि आपने जुमले सही टेंस के साथ, सही फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बनाने कैसे हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं कि ओ देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, आई वाज स्टक इन द, आई वाज स्टक ऑन द रोड। अगर आपने कहना मैं सड़क पे फंस गई थी, आई वाज स्टक ऑन द रोड। मैं लिबर्टी राउंड अबाउट में फंस गई थी, आई वाज स्टक एट लिबर्टी राउंड अबाउट। मैं दुकान में फंस गई थी, बहुत ज्यादा कस्टमर्स थे, देयर वर लॉट ऑफ कस्टमर्स, देयर वर लॉट ऑफ कस्टमर्स इन द शॉप एंड आई वाज स्टक देयर, मैं वहां फंस गई थी, ठीक है। तो स्टक का जो मतलब है वो है कि आप चाहते ना चाहते हुए किसी जगह पर फंस जाए, मसरूफ हो जाए, मजबूरन, इसको बोलते हैं स्टक, STUCK, ठीक है। सो आई वाज स्टक इन द शॉप, आई वाज स्टक इन द मार्केट, आई वाज स्टक इन द वेडिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा धुंध थी बाहर, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ फॉग आउटसाइड, देयर वाज वहां थी। अगर आपने प्रेजेंट में करना है, देयर इज अ लॉट ऑफ फॉग आउटसाइड, इज हो जाएगा आज का दौर, वाज हो जाएगा माजी का दौर। और अगर आपने कहना हो बहुत ज्यादा धुंध होगी, तो आप कहेंगे देयर विल बी, फ्यूचर में आ गया ना, देयर विल बी अ लॉट जी ऑफ फॉग आउटसाइड एट 11 PM। 11 PM का मतलब क्या है, 11 बजे रात को, तो 11 बजे रात को बहुत ज्यादा धुंध हो जाएगी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ फॉग एट 11 PM। अगर आपने कहना हो कल बहुत थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ फॉग, वाज अ पास्ट चला गया ना, देयर वाज अ लॉट ऑफ फॉग एट 11 PM yesterday, परसों थी, द डे बिफोर yesterday, परसों की मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। परसों जी 11 बजे बहुत ज्यादा धुंध थी, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ फॉग एट 11 PM द डे बिफोर yesterday, ठीक है। तो 11 बजे परसों बहुत ज्यादा धुंध थी और मैं ट्रैफिक में फंस गई, आई वाज स्टक इन द ट्रैफिक, ठीक है, और मैं ट्रैफिक में फंस गई। ये वो जुमले हैं जो आप आजकल के दौर के अंदर रोजाना इस्तेमाल करते हैं। महंगाई बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, धुंध बहुत है, धुंध बहुत थी, परसों बहुत थी, कल बहुत होगी, रात को बहुत होगी। तो धुंध, महंगाई और ट्रैफिक, ये तीन चीजें इस टाइम पर्टिनेंट इश्यूज हैं जो आपको रोजाना, आप दो लोग जब भी मिलते हैं मौसम की बात जरूर करते हैं, महंगाई की जरूर बात करते हैं, ठीक है। और तीसरा, और धुंध की बात। लोग हमेशा ये जरूर बात करते हैं कि यार बहुत ही ट्रैफिक थी, ठीक है। जब भी दो लोग मिलेंगे ऑब्वियसली कोई ना कोई कहीं से आया होगा, बाइक पे, गाड़ी पे, बस पे, कहीं से भी आया होगा, तो ही वुड बी फेसिंग द ट्रैफिक, तो उसने ट्रैफिक को तो फेस किया ही होगा, ठीक है। तो जब भी दो लोग मिलते हैं तो तीन बातें जरूर करते हैं, मौसम की, ट्रैफिक की और महंगाई की। ये हो ही नहीं सकता कि अ पर्सन हु इज अ बिलियनियर, चाहे एक बंदा बिलियनियर है, ठीक है, चाहे एक बंदा, अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि मिलियन क्या होता है, एक 1 मिलियन क्या होता है, लाख, 10 लाख होता है, 1 लाख नहीं होता, याद रखिएगा हमेशा। लाख, 10 लाख, लाख। लाख नहीं होता, लाख ठीक है। की कोई इंग्लिश नहीं है, याद रखिएगा इंग्लिश में। 1 लाख की इंग्लिश में कोई अंग्रेजी नहीं है। 99,000 को क्या बोलते हैं, हाँ आपने कहा था 99,000, 99,000, 99,000। जी 99,000। और 1 लाख को बोलते हैं 100,000। जी
1 लाख को क्या बोलते हैं? 100,000 100,000। 2 लाख को बोलते हैं 200,000। 3 लाख को बोलते हैं 300,000। 4.5 लाख को बोलते हैं 450,000। 450,000। 6 लाख को बोलते हैं 600,000। 9 लाख को बोलते हैं 900,000। 10 लाख के लिए इंग्लिश में लफ्ज है वो है 1 मिलियन। ठीक है, तो 1.5 मिलियन का मतलब होता है 15 लाख। 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख और 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। याद रखिएगा, इंग्लिश में करोड़ नहीं है, इंग्लिश में लाख भी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में मिलियन है, वो उर्दू में नहीं है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है कि ये चीज 1.5 मिलियन की है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1.5 लाख बोल रहा है, वो 15 लाख बोल रहा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं मेरी गाड़ी 3 मिलियन की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कह रहे हैं 3 लाख की है, आप कह रहे हैं 30 लाख की है। ठीक है, तो ये वर्ड्स याद रखिएगा, गिनती की भी। बीइंग अ बिजनेस वुमन आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो जब आप कहती हैं कि ये चीज जो है 5 मिलियन की है, इसका मतलब है वो 50 लाख की है। कहाँ गया ये? उनसे बात जी। करने भाईजान दुकान छोड़ के। ठीक है, तो ये वाले ये वर्ड भी आपने हमेशा याद एक रखना। मिनट सर। अरे भाईजान ठीक है जी भाईजान। वालेकुम सलाम। तो मैंने लड़के से बात की है जिसकी वो मैं कह रहा था ना 6 महीने के लिए आना चाह रहा था, जी जी। वो आज शादी पे कल जुम्मे के बाद आएगा मेरे पास। अच्छा। तो मैं कल ले आऊंगा। दूसरा वो लड़का बैठा है, वो 7,000 देगा आपको। ठीक है, ये पहुंच गए। किस चीज के? किराया के बाहर अड्डे वाला बैठा होगा, वो 7,000 देगा? 7,000 अच्छा ठीक, 5 या 2 पीर को इंशाल्लाह दे देगा। अच्छा, पीर से स्टार्ट करेगा? नहीं, स्टार्ट तो आज से ही कर देगा ना। कौन अच्छा। चाहे आप रात को जब जाएंगे बंद कर देंगे, अंदर रखना होगा, नहीं तो मैं रख लूंगा पीर से, आप अपनी तरफ से रख लीजिएगा। जी ठीक है। तो लड़का कल आता है, उसको मैं लेके आता हूँ आपके पास। चलो ठीक है। अरसलान, तुम उस लड़के को बिठाया हो ना जाके? बिठाया है? बैठ गया वो लड़का? ठीक है ठीक है। फिर मैं परसों पीर से इंशाल्लाह मैं खुद वो दुकान खुद रख करूंगी जाके ना। ज्यादा अच्छी बात है। हाँ, वो बेटा आ जाएगा ना मेरा, तो मैं वो ओपन कर लूंगी वो शॉप ना मैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। जी सर, मेरा बस यही मसला है थोड़ा सा। ठीक है, आई नो यू आर डूइंग बिजनेस। तो ये मैं इसलिए पढ़ती भी नहीं सकती। नहीं ठीक है। देखिए, बात ये है कि बिजनेस आपकी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी का मतलब आप समझती हैं क्या होता हाँ है? जी। इंग्लिश में एक वर्ड है प्रायोरिटी, जरूरत। तरजीह। नो नो नो, जरूरत। तरजीह। तरजीह। अच्छा। ठीक है, आप कहते हैं ना तरजीह। प्रायोरिटीज हैं, तरजीहात हैं। ठीक है, तरजीह का मतलब जी। होता है जिसको आप एक इंपॉर्टेंट समझती हैं। प्रायोरिटी होती है, तरजीह होती है। ऑब्वियसली बिजनेस आपकी प्रायोरिटी है और आप अपनी बिजनेस लाइफ को ही बेहतर करने के लिए ही इंग्लिश सीख रही है ना, कि आपको जो है जी। इंटरनेशनल बिजनेस लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मिलियन हमेशा हाँ याद रखना, 10 लाख को बोलते हैं, 1 लाख को नहीं बोलते। ठीक है, ठीक है। अच्छा और दूसरा, 10 मिलियन 1 करोड़ को। हम तो 10 मिलियन 1 करोड़ आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज जो आपने याद रखनी है कि ये मैंने आपको 3 चीजें बताई कि हाउ टू कॉन्वर्सेट, कि आपने कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है, तकरीबन मौसम के बारे में, महंगाई के बारे में और आपने ट्रैफिक के बारे में। ठीक है, कुछ समझ आया ये जो मैंने जी सेंटेंसेस बताए आपको? जी 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 Don't सब worry, का। please let me know once you are free. I was stuck in the traffic. जी ठीक है, I was traffic. जी There would be a lot of fog. तो there will be a lot of ये जो वर्ड है ना, इसको आप जहन में बिठा लें कि जब आपने कहा बहुत सारी चीज है। There was a lot of बहुत ज्यादा था, there is a lot of बहुत ज्यादा है, there will be a lot of बहुत ज्यादा होगा, कुछ भी। फोग हो सकती है, ट्रैफिक हो सकती है, ठीक है, प्राइस हाइक, महंगाई हो सकती है। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसे अल्फाज जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं विद देयर इज अ लॉट ऑफ, देयर वाज अ लॉट ऑफ और देयर विल बी अ लॉट ऑफ। बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा होगा। आगे कोई भी आप चीज लगा सकती हैं, या वो महंगाई हो या वो फोग हो या वो बारिश हो, कुछ भी। रेन आ सकती है, फोग आ सकती है। आप कहते हैं आई एम स्टक इन द ट्रैफिक, आई एम स्टक इन द शॉप, आई वाज स्टक इन द ट्रैफिक, आई वाज स्टक इन द शॉप, आई विल बी स्टक इन द ट्रैफिक, आई विल बी स्टक इन द शॉप। तो विल बी, वाज एंड इज ये डिटरमिन कर देते हैं कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। समझ आई बात? जी सर। अब मैं आपको ये दोनों वीडियोस की रिकॉर्डिंग सेंड करता हूं। ठीक है, तो जी आपने क्या करना है, आप कोशिश करें एक तो इंडेफिनिट को प्रैक्टिस करने की। ठीक है, और साथ में आपको जो मैंने ये 3 सिचुएशंस बताई हैं एक मेट्रोपॉलिटन लाइफ के अंदर। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि मेट्रोपॉलिटन लाइफ के अंदर लोग 6 दफा खाना खाते हैं, वो उसकी क्या टर्म्स है वो भी मैंने आपको बताई। ठीक है, और एक मेट्रो, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, हाँ,
इसी तरह लंच, हाई टी, पर, सुपर और सपर और डिनर। हाँ डिनर। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस तरह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर डाउनटाउन भी होता है और सिटी उसके अलावा सबर्ब्स होते हैं, आपकी आउटस्कर्ट्स होते हैं, कैंटोनमेंट्स होते हैं। तो आपकी जो ट्रैफिक है उसका सिस्टम और आपकी जो रहन सहन है एक मेट्रोपॉलिटन लाइफ के अंदर वो डिफरेंट होता है। यानी डीएचए के अंदर लाइफ जो है वो मोची गेट की लाइफ से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और मोची गेट की जो लाइफ है वो Yes. डीएचए से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो हर शहर के अंदर मुख्तलिफ शहर होते हैं एक मेट्रोपॉलिटन लाइफ के अंदर। तो ये सारा सिनेरियो है। तो इसको आपने क्या करना है, कोई भी सेंटेंसेस जो आपके जहन में आते हैं आपने इनको बनाने की कोशिश करनी है इन सिनेरियोज के अंदर, ठीक है। वीडियो मैं आपको सेंड करता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें जैसे ही आपको टाइम मिलता है, ठीक है। ट्राई टू डू इट, ठीक है। और आप फिर मुझे कुछ भी थोड़े बहुत जो आप 5-6 सेंटेंसेस भी बनाएं इन तमाम सिचुएशंस के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर, वेदर के ऊपर या प्राइस हाइक के ऊपर, वो आपने मुझसे कल डिस्कस करना है, ठीक है, कल की क्लास में, ठीक है, मैं कर लूंगी ठीक सर, है। चले अब मैं ये दोनों बना वीडियोस लूंगी जो थोड़े है से। डेफिनेट वाली भी और ये वाली भी मैं ऐसा करता हूँ दोनों ही यूट्यूब पर डालता हूँ और फिर मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, हाँ आपके ईमेल में गूगल ड्राइव पे नहीं मिल रही, ठीक है। ठीक है, चलो आप ठीक, दोनों मुझे भेज दीजिए फिर ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।